प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। वेलकम टू दिस ऑनलाइन सर्विस दिस मॉर्निंग। आइए हम मिलकर उसकी स्तुति और आराधना करें। परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है कि हम मिलकर उसकी आराधना स्तुति कर सके इस ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से। जहाँ पर भी हैं हम, अपने घरों में, कोई भी स्थान में है, क्यों ना हम एकजुट होकर उसकी आराधना करें। इस गीत को गाएं, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. एक और बार गाएं। Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is the strong tower. The righteous run into and they are saved. The name of the Lord, the strong tower. The righteous run into it and they are saved. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord, the Most High. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is the strong tower. The righteous run into and they are saved. The name of the Lord is the strong tower. The righteous run into it and they are saved. The name of the Lord is the strong tower. The righteous run into and they are saved. The name of the Lord is the strong tower. The righteous run into it and they are saved. Amen. कि हम उस गीत को गाएं। Let's sing the song. Because He lives, I can face tomorrow. क्या ही धन्य आशा है कि जानने की कि हमारा परमेश्वर जीवित है। He is alive and we have this hope that we will face tomorrow because of His power, because of His love, because of His faithfulness in our lives. Let's join and sing this song, Because He lives. God sent His Son. They call Him Jesus. He came
pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he brings. But greater still, the calm assurance this child will face uncertain days because he lives. And because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. And because I know my future, and life is worth the living just because he lived. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the light of glory and know he reigned. And because he lived, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds my future, and life is worth the living just because he lived. And life is worth the living just because he lived. आइए हम अपने आंखों को बंद करें. Let's close our eyes and take some time and worship him. Lord, we come before your throne of grace, O Master. You alone are worthy. You alone are worthy, O Lord. There is none like you, O Lord. तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर. We worship you, Lord. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं.
जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। गाए हो ज़हना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ज़हना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ओ प्यारे पिता, तूने हमसे ना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को ओ अपने बेटे को कुर्बान किया। ओ प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो ज़हना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ज़हना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा। अपनी राहों पे हमको चला और यीशु के जैसा बना। पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा। अपनी राहों पे हमको चला और यीशु के जैसा बना। हम गाए हो ज़हना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ज़हना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा।
प्रभु हमारा खुदा। शिराना Jesus, we worship your name. Shandararanda. दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। प्रति भोर को तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना 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 मेरे शुरा जाकी पवित्र आत्मा प्रभु की मेरे ये शुरा जाकी पवित्र आत्मा प्रभु की। Sakerandorobo Ritheke besurorom shantava O आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। आत्मा के वरदानों
दानों से तृप्त कर दे मुझे, जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का, ओ अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीषों दे। ओ अभी तू आजा हमारे बीच, ओ अपनी आशीषों दे। आत्मा के वरदानों से ओ तृप्त कर दे मुझे, आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। ओ जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। प्रेमी आत्मा प्रभु का, ओ अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीषों दे। ओ अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीषों दे। ओ अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीषों दे। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड मास्टर, वी जस्ट वांट टू थैंक यू। फिल अस विद योर स्पिरिट लॉर्ड, अपनी आत्मा से हमें भर, अपनी रूह से हमें भर, हमारे जीवनों को बदल परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद यीशु महान परमेश्वर। एक और बात धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो हम तेरी आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तू हम पर अपनी दया दिखाता है, तेरा महान प्रेम हमारे लिए बना रहता है। कठिन समयों में तू हमारा साथ देता है परमेश्वर, अपनी आत्मा से हमें शांति देता है, पवित्र आत्मा मुफ्त में देता है। ये हमारी प्रार्थना है कि हम तुझ जैसे बनने पाए, हमारे बातों में, हमारे विचारों में,
जो भी हम करते हम तेरे जैसे बनने पाए परमेश्वर। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए, तेरे दासों को तेरे हाथ में सौंपते हुए, तेरे महान पवित्र सामर्थ्य वचन को तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर, हमसे बोल और बातचीत कर। आगे के समय को तेरे हाथ में देते हुए इस दुआ को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank the Lord for this wonderful morning. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। I trust that we all are well in the Lord. मैं विश्वास करता हूं कि हम सभी लोग परमेश्वर में स्वस्थ पाए जाते होंगे। We spent some time in worship कुछ समय हम उपासना में व्यतीत किए and let's look into the Word of God. और आइए परमेश्वर के वचन में हम कुछ मनन करें। Amen. आमेन। And before we go into the Word, shall we look to the Lord in a word of prayer? और इससे पहले कि हम वचन में से देखें, आइए हम प्रार्थना में जाएं। Thank you, Father. Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, matchless, glorious, wonderful name of Jesus, यीशु मसीह के अतुल्य महिमामयी नाम में we walk into your holy presence this morning, हम आज की सुबह तेरी पवित्र हुजूरी में प्रवेश करते हैं, knowing, Lord, that the veil is rent in two. ये जानकर कि उस पर्दे को तूने दो भाग में अलग कर दिया We can enter into your presence with boldness और हम हियाव के साथ तेरी उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं and call you Abba, Father. और तुझको अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। Lord, my Father, we pray this morning. परमेश्वर पिता, आज सुबह हमारी ये तुझसे प्रार्थना है, Bless your people, Lord. तेरे सुनने वाले लोगों को तू आशीष देना Give us the unction from on high. और स्वर्ग से वो सामर्थ्य तू हमें उंडेल कर दे। Give us utterance to speak your word. तेरे वचन को बोलने की सामर्थ्य दे। Warm our hearts with your presence, Lord. हमारे हृदयों को तेरी उपस्थिति से सरगर्म कर दे। Oh, we bless your holy name. ओ तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। We say like the psalmist who said, हम भजन के लिखने वाले के समान बोल सकते। Bless the Lord, O my soul, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे and all that is within me bless his holy name. और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Oh, give thanks to the Lord, he is good, यहोवा को धन्य कहो क्योंकि वो भला है, and mercy endures forever. उसकी करुणा सदा की है। Oh, Father, we pray your blessing upon us all. पिताजी तेरी आशीष को हम सब लोगों के ऊपर में मांगते हैं। In Jesus' precious name we pray. यीशु की बहुमूल्य नाम में मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। Shall we look to the Lord? Shall we turn our Bibles? आइए हम अपनी बाइबलों को खोल लेंगे। Gospel of John, यूहन्ना का सुसमाचार the 4th chapter. और उसका 4था अध्याय। We are reading from verse 46 और उसकी 46 आयत से to the हम end. इसे आखिरी तक पढ़ लेंगे। John's Gospel, 4th chapter, reading from verse 46. यूहन्ना का सुसमाचार 4था अध्याय उसकी 46 आयत से आगे। So Jesus came again into Cana of Galilee, where he had made water wine. And there was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum. तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। When he heard that Jesus was come out of Judea into Galilee, he went unto him, besought him that he would come down and heal his son, for he was at the point of death. वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया के से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। Then said Jesus unto him, Except ye see signs and wonders, ye will not believe. यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। And the nobleman said unto him, Sir, come down, ere my child die. राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। And Jesus said unto him, Go thy way, thy son liveth.
And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way. And as he was now going down, his servants met him and told him, saying, Thy son liveth. यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। Then inquired he of them the hour when he began to amend. And they said unto him, Yesterday, at the 7th hour, the fever left him. तब उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। So the father knew that it was the same hour in the which Jesus said unto him, Thy son liveth. And he believed, and he himself believed, and his whole house. तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। This is again the second miracle that Jesus did when he was come out of Judea into Galilee. यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। May God bless the reading of this word. परमेश्वर अपनी इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। When you read the scriptures, you'll find that there are desperate situations people are going through. आप पवित्र शास्त्र को जब पढ़ते हैं तो आप पाएंगे यहाँ पर ऐसे ऐसे हताश लोग हैं जो बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। Regardless of what position they might be holding, वो किस भी पद या औहदे में क्यों ना हो, उनसे हटकर trouble strikes everyone. समस्या हर आदमी के जीवन में आती है। And here is a nobleman. यहाँ पर एक अच्छा, एक सज्जन मनुष्य था। He held a position in the court. वो राजा का कर्मचारी था। He had servants under him. उसके अधीन में सेवक गण थे। He is a man of some position. और ये आदमी स्वयं कुछ ऊंचा पद रखने वाला राजा का एक कर्मचारी था। But something happens in his house. लेकिन उसके घर के अंदर ही कोई घटना हुई। That's what is always happening all around the world. चारों तरफ आज दुनिया में ऐसे ही बातें होती हैं। We are not just suffering for what we are experiencing. हम केवल जो स्वयं अनुभव कर रहे हैं वही मात्र दुख नहीं है। We suffer because our loved ones suffer. हम इसलिए भी दुख उठाते हैं क्योंकि हमारा कोई प्रियजन बीमार है या वो तकलीफ में है। You go to the hospitals, you'll find thousands of people. आप अस्पताल जाएं, आप वहां पर हजारों लोगों को पाएंगे। There are some who are inside the wards, कुछ तो ऐसे हैं जो वार्ड के अंदर हैं, and the others who are lingering outside. और कुछ ऐसे दूसरे हैं जो वार्ड के बाहर इंतजार कर रहे हैं, Their relations, their friends. क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार या उनका कोई मित्र बीमार है। So man goes through desperate situations. आदमी स्वयं ऐसे हताशा की स्थिति से गुजरता है। And you find here this nobleman has problem in his house. यहाँ पर आप पाएंगे कि राजा के कर्मचारी के घर में कुछ एक समस्या आन पड़ी थी। His own son is got so sick that he's about to die. और उसका खुद का जो बेटा था वो इतना बीमार हो गया कि बचने की उम्मीद नहीं थी। See, Capernaum and where Jesus was is about 10 kilometers. और कफरनहूम और यीशु मसीह अभी जहां थे उनके बीच की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की थी। Now, this man in this terrible situation, ये आदमी ऐसी भयंकर परिस्थिति के अंदर में he heard that Jesus had come उसको to एक Cana of खबर Galilee. मिला कि यीशु मसीह गलील के काना नगर में आया है। Mind you, Jesus had not done any physical healing up till now. ध्यान रहे, यीशु मसीह ने अब तक कोई शारीरिक चंगाई नहीं की थी। The first miracle was turning the water into wine. और काना में जो पहला चमत्कार उसने किया था वो पानी को दाखरस में तब्दील करने का आश्चर्य कर्म And किया this था। miracle is going to open a door for people to be healed physically. और अब जो चमत्कार होने वाला था वो एक द्वार खोलने वाला था लोगों के लिए कि वो शरीर में भी यीशु से चंगे हो सकते हैं। God is interested in the whole man. परमेश्वर संपूर्ण चंगे आदमी पर विश्वास करता है। Not only that, he knows our every need. न केवल इतना परंतु वो हमारी सारी जरूरतों को भी जानता है। Jesus said, don't think of tomorrow.
यीशु मसीह ने कहा आने वाले कल के विषय में चिंता मत करो, Tomorrow will take care of itself. क्योंकि आने वाला कल स्वयं अपनी फिक्र कर लेगा। For your heavenly Father क्योंकि तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है knoweth what you need. वो जानता है तुम्हें क्या चाहिए। So when they needed wine, Jesus was there. जब वहां पर दाखरस की कमी हो गई भोज में, यीशु मसीह वहां पर उस संकट से उबारने वहां था। The scripture records that the second miracle Jesus did was the healing of the nobleman's son. वचन में लिखा है जो दूसरा चमत्कार यीशु मसीह ने वहां पर किया वो था एक राजा के कर्मचारी को चंगा करने का। The first one was turning water into wine. पहला तो दाखरस पानी से को दाखरस बनाने का था। Jesus met the need of the hour. यीशु मसीह ने समय की आवश्यकता के अनुसार वहां पर कार्य किया। Their reputation was at stake. वहां पर के लोगों का इज्जत दांव में लगा था। They were facing an embarrassing situation. और वे लोग बड़ी शर्मिंदगी की परिस्थिति में उस दिन आ गए थे। When Jesus stepped in, he changed the scene. लेकिन यीशु मसीह जब उस भोज के घर में आया, उसने सारी परिस्थिति बदल दी। But what we read in the scripture, हम वचन में जो पढ़ते हैं, up till now people have not seen him perform miracles upon the sick. अब तक यीशु मसीह किसी बीमार के ऊपर चंगाई का काम नहीं किया था। So what made this nobleman to approach Christ is a big thing. तो क्या बात थी कि ये राजा का कर्मचारी अपने बेटे के लिए यीशु के पास निवेदन लेके आया, यही अपने आप में बड़ी बात थी। Amen. आमेन। He had approached Christ as a desperate situation. वो अपनी हताशा की स्थिति में कगार में पहुंच के यीशु के पास आया He था। had come requesting Christ to come to his house. His son was dying. वो ये निवेदन लेकर आया था कि यीशु उसके घर चले जहां बेटा है, क्योंकि उसका बेटा मरने पर था। He had not seen Jesus heal the sick before. उसने इसके पहले यीशु को किसी बीमार को चंगा करते नहीं देखा था। But he might have heard हो सकता है उसने सुना हो when he read those scripture in the synagogue. जब वो आराधनालय में जो हमेशा पढ़ी जाती उस वचन को सुना होगा। When Jesus had read those words, जब यीशु मसीह ने उस वचन को उस दिन पढ़ा था, the Spirit of the Lord is upon me. परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। He has anointed me to preach good news, उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं सुसमाचार को सुनाऊं, to set the captives free. बंधुओं को मैं आजाद करूं। Oh boy, who knows? He's the man. कौन जानता है, शायद ये अभिषिक्त व्यक्ति यही हो। There is no other hope but he. क्योंकि अब तो मेरे पास इसके छोड़ और कोई आशा नहीं। It is not easy to leave a sick, dying child and go to another city. अपने ही बीमार बच्चे को मरती हुई हालात के दौरान छोड़कर दूसरे नगर में जाना आसान बात This is नहीं the time the child needed him most. ऐसा आखिरी समय में बेटे को अपने पिता की सबसे अधिक जरूरत थी। This is the time he wanted to hold the hand of his father. ऐसे समय में वो बेटा अपने पिता के हाथ को बांध कर रखना चाहता था। But the man knew if I stayed here, he will die. परंतु आदमी समझ गया, यदि मैं यहाँ पर ही बैठा रहूं, मैं अपने बेटे को मरते देखूंगा। But if I go to Christ, किंतु यदि मैं उस मनुष्य यीशु के पास जाऊंगा, something will happen. वहां पर कुछ होएगा जरूर। Sometimes we need to leave our situations and go to God. कभी कभी हमें अपनी परिस्थितियों को उसी हालात में छोड़कर परमेश्वर के सन्मुख जाने की जरूरत है। There is no other option for us. हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं। If we sit there, we'll die. क्योंकि यदि हम उसी जगह बैठे रहें तो वो मर जाएगा। But if we get up and go किंतु यदि हम वहां से उठें और प्रभु के पास जाएं, and take it to the Lord in prayer, प्रार्थना में चले जाएं प्रभु के पास, there is a miracle waiting for you. तो सुने वहां पर एक आश्चर्य कर्म आपका इंतजार कर रहा है। Amen. Amen. In his desperation, he comes to Jesus. अपने ऐसी हताशा की स्थिति में ये कर्मचारी राजा के प्रभु यीशु के पास आया And he says to him, और यीशु से कहता है "He come, Master. कि हे स्वामी चल, My son is in the dying bed. मेरा जो बेटा है वो मृत्यु होने की स्थिति में है। Come to my house, heal him." मेरे घर आ, मेरे बेटे को चंगा कर दे। That prayer goes on through the years. ये प्रार्थना सालों से चलती आई है, From every home, from every family, हर एक घर के अंदर से, परिवार के अंदर से there is prayers going up for their loved ones. प्रार्थनाएं अपने प्रियजनों के लिए लोगों ने प्रभु की ओर उठाया है। And what sustains a family is the prayer of his people. और कौन सी चीज है जो हमें संभालती है, वो
ऐसे ही लोगों की प्रार्थनाएं हैं। The ones who are interceding with God. वे लोग जो परमेश्वर के पास जाके निवेदन मध्यस्थता करते। When those people cannot pray. जब वे लोग जो बीमार है प्रार्थना नहीं कर सकते। Those people who cannot help themselves. जब वो जो बीमार है अपनी मदद करने में अयोग्य है। Thank God for those who approach God for them. प्रभु का धन्यवाद उनके लिए जो उनके बदौलत परमेश्वर के पास जाके निवेदन करते। Intercede on their behalf. उनकी तरफ से मध्यस्थता करते। This man is in a desperate situation. ये आदमी ऐसी हताशा की स्थिति में है। And he says to him, और वो यीशु से कहता है, come, प्रभु यीशु आज आ मेरे साथ चल। heal my son. आ और मेरे पुत्र को चंगा कर दे। Ere he dies. इससे पहले कि मेरा बेटा मर जाए। You might be in that situation too. हो सकता है आप में से कोई ऐसे ही परिस्थिति में है। And you are calling on God and saying, और आप परमेश्वर को पुकार कर बोल रहे हैं, Lord, I pray for my so and so. परमेश्वर मैं अपने उस प्रिय जन के लिए तुझसे निवेदन कर रहा हूँ। And you know, आप जानते हैं Jesus has never disappointed anybody. यीशु मसीह ने किसी को भी जिससे निवेदन किया है निराश नहीं किया है। And when he heard of Jesus, he came out of Judea into Galilee. लिखा है जब उस आदमी ने सुना कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है। And he went unto him and besought him that he would come down and heal his son, for he was at the point of death. वो उसके पास गया और उसे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। Is there any situation like that you are facing? क्या आप आज जो परिस्थिति का सामना कर रहे कुछ ऐसा ही है? When doctors have shaken their head, डॉक्टर ने अपना सिर हिला दिया नहीं कहकर, still believe God for a miracle. तो भी विश्वास कर परमेश्वर Hallelujah. पर एक चमत्कार के लिए। Hallelujah. आमेन। And Jesus said, except you see signs and wonders, you will not believe. यीशु ने उससे कहा जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। The nobleman said to him, Sir, come down. My child dies. राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। You know, there are times when Jesus went with people. आप जानते हैं ऐसा समय था जब यीशु मसीह लोगों के बुलाने पर उनके संग चला गया। But this time, परंतु इस बार he is saying to him, यीशु मसीह उस आदमी से कहता है, Go thy way, thy son lives. जा, तेरा पुत्र जीवित है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Words of life, जीवन देने वाले वचन निकले, words of authority, अधिकार वाले शब्द निकले, through time and space. समय को जो पार करते, दूरी को The पार करने words वाले। of Jesus Christ, यीशु मसीह के मुख के वो शब्द as he spake, जैसे उसने कहा, went through time and space and touched the sick body. वो शब्द जाकर उस बीमार शरीर को स्पर्श कर लिया। And that very moment, और उसी घड़ी the fever left him. वो ज्वर उस लड़के को छोड़ गया। But this man doesn't know what's happened. परंतु ये आदमी को अभी तक नहीं मालूम उस बेटे के साथ क्या हुआ He है। has to believe the words of Jesus. उसे यीशु के वचन पर उसने विश्वास किया। And it says here, और लिखा है, it says a very nice word, it is here. यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। And the man believed the words that Jesus had spoken unto him. उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। That was a miracle. ये आश्चर्य कर्म है। As he spake, assurance came. जैसे यीशु मसीह ने कहा, उसके अंदर एक आश्वासन आ गया। Amen. आमेन। We got to believe what God has said. परमेश्वर जब कुछ बोलता है हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। He could have lingered there. वो उसके बोलने के बाद भी वहीं पर खड़ा और यहाँ वहाँ भटकता रहता, Kept on pestering him to come. और शायद बोलते रहता, प्रभु मेरे घर चल, मेरे घर चल। But he believed the word. परंतु जैसे यीशु ने कहा, उसने उस पर विश्वास किया He obeyed the word. और उसने उसके अनुसार आज्ञा का He पालन says, किया। go thy way. यीशु मसीह ने कहा, जा, Your son liveth. तेरा पुत्र जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। Believe God's word. परमेश्वर के कहे वचन पर विश्वास करिए। And Bible says, और बाइबल कहती है, as he is going back,
जैसे ही वो जा रहा था his servants met him. तो मार्ग में उसके दास उसको मिल गए। You see, one day had already passed. देखिए एक दिन बीत चुका था And they began to say, और वे दास उससे कहने लगे, oh, you know, you see the other story. Sometimes the servants came and they said, "Oh, your daughter is dead." और अब दूसरी एक घटना पढ़ते जहां पर घर से कुछ सेवक लोग आए, बीच में मिले अपने मालिक से और कहा कि तेरी बेटी मर गई है। So what news are they bringing? Why are they coming? ये सेवक जो आ रहे हैं, ये क्या समाचार लेकर सामने से आ रहे They हैं? got so excited. वे लोग इतने उत्साहित हुए। He said, "Let's go and call our master." वो बोले कि चलो हम अपने मालिक को ये खबर देते हैं। Suddenly this child has got up. एकाएक वो बहुत मरने वाला वो लड़का उठ बैठा। He's talking. अब वो बातचीत भी करने लगा। He's alive and well. अब वो स्वस्थ और चंगा हो गया। Oh, they decided among themselves, "Let's go." उन्होंने आपस में बात किया, चलो अब मालिक के पास चलने का समय है। Halfway they met them. और बीच रास्ते में मालिक मिल गया And they said, "Your son lives." और उन्होंने अपने मालिक से कहा, तेरा लड़का जीवित है। He was not interested in whether his son is alive or not. और उसके बारे में इसकी चिंता नहीं थी कि लड़का जीवित है या मरा है, He knew it has happened. क्योंकि उसको तो पता था कि यीशु ने कहा है वो जीवित है। He inquired what time. उसको चिंता ये थी, ये जानना था कि किस समय वो चंगा हुआ। The 7th hour. उन्होंने बताया कि 7वें घंटे के Yesterday. लगभग, कल 7वें पहर के See that लगभग। there is a time lapse. देखिए वहां पर एक समय का अंतराल बीता A था। time to believe what God has said. परमेश्वर ने जो बात कही है उस पर विश्वास करने का एक समय था। There were no mobile phones to communicate. उन दिनों में कोई मोबाइल फोन नहीं था आपस में बात करने। He had to kept believing the word of God. यीशु के मुख्य उस वचन पर भरोसा करते हुए Your वो चला। son liveth. उसने कहा तेरा बेटा जीवित Your है। son liveth. तेरा बेटा जीवित Your है। son liveth. तेरा बेटा जीवित Your है। situation is changed. तेरी परिस्थिति बदल गई है। And he began to say in his heart, और वो अपने हृदय में बोलने "Oh लगा, yes, I believe." मैं विश्वास करता I हूँ। believe. मैं विश्वास करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Yes, my friends. हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, Simple as it is. जितना सरल ये बात है विश्वास We don't have to करना। work out things. We have to just believe. वो हमें कोई कर्म नहीं परंतु केवल विश्वास करना है। Amen. आमेन। Bible says, बाइबल में लिखा है verse 53. 53 आयत में, So the father knew that it was the same hour in which Jesus said unto him, "Thy son liveth." And he liveth, and himself believed, and his whole house. तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Miracles चमत्कार are still happening आज भी हो रहे हैं, because Jesus is the same yesterday, क्योंकि वही प्रभु यीशु मसीह कल भी वही है, today, आज भी and forever. और आने वाले युग में भी वो वही है। What he did yesterday, कल उसने जो किया था he will do it today. वो आज भी उसे करेगा। What he has done today, उसने जो आज किया है he will do it tomorrow. आने वाले कल भी करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Only believe. केवल विश्वास रख। Amen. आमेन। God is not complicating things. He's giving us simple things. परमेश्वर किसी प्रकार से चीजों को कठिन नहीं बना रहा परंतु आसान बना रहा है। Don't do works. कर्म को मत कर, Believe only. पहले विश्वास मात्र कर। That's a difficult thing. ये कठिन बात है। Man wants to do everything by himself. आदमी स्वयं से कुछ करके पाना चाहता है। God is saying, "You just trust me." परमेश्वर बोल रहा है तू केवल मुझ पर भरोसा डाल। Just believing in what? किस पर विश्वास करना है? On whom you believe. तू जिस पर विश्वास करता है That is what matters. वो मायने रखता है। You will find people always, if you tell them about a miracle, they say, "Huh, it happens with us also." आप पाएंगे कि जब कभी भी आप किसी चमत्कार की लोगों से चर्चा करें तो वो कहेंगे कि हाँ वहां पर भी ऐसा हुआ, It's in our religion also. और उस धर्म में भी ऐसा होता है। You see, सुनिए, listen, they don't know their own book. वो अपने स्वयं की किताबों को भी लोग जानते नहीं हैं। We must know our book. हमें अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को जानना जरूरी है। James writing says, याकूब तो लिखते हुए बोलता है, he says, "You believe in God." तुम परमेश्वर पर विश्वास करते He हो। says, "Devils also believe and they tremble." वो कहता है शैतान भी विश्वास करता है और कांपता है। What kind of belief is this? किस प्रकार का विश्वास है ये? Devil also believes. शैतान को भी विश्वास है।
He believes God is almighty. वो विश्वास है उसे कि परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है, He is all knowing. वो सर्वज्ञानी है, He is all powerful. वो सर्व सामर्थी है, He knows him. और शैतान इस परमेश्वर को जानता है, But he doesn't accept him as who he is. परंतु शैतान परमेश्वर के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करता। To receive from God परमेश्वर से यदि पाना है is to believe his word. तो उसके वचन पर विश्वास करना है। The true God, जो सच्चा the परमेश्वर, living God. जो जीवित परमेश्वर है। Amen. आमेन। What is believe anyway? विश्वास करना हम वैसे बोलते किसे हैं? Trust in what has been spoken. जो बात कही गई है भरोसा करें उस पर। We listen to God's word and then we think on our own thoughts. हम परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं, लेकिन सुनने के बाद हम अपने ही विचारों के साथ सोचते हैं। We get prayed and then again we are back into square one. हम प्रार्थना करवाते हैं लेकिन लौटकर फिर अपनी ही परिस्थिति के अनुसार जीते हैं। After we are prayed for, we must say, Lord, I receive it. प्रार्थना के बाद हमें यह कहना चाहिए, परमेश्वर मैंने उस जिसके लिए प्रार्थना की उसको स्वीकार करता हूं And I believe. और विश्वास करता हूं। You got to say that. आपको ये चीज अपने मुंह से बोलनी है। What is belief? विश्वास क्या चीज है? Confidence in what has been spoken. जो बात कही गई है उस पर पूर्ण भरोसा, Or या फिर accepting what has been spoken. जो कहा गया है उसको स्वीकार कर लेना, Or relying on the things that have been spoken. या जो बात कही गई है उस पर निर्भर हो जाना, Being convinced, पूरी तरह से आश्वासित होकर, persuaded, पूरी तरह से आप निश्चिंत होकर what has been said will happen. कि जो कह दिया गया है वैसा ही होगा। That simple word believe can change the whole scenario. ये एक छोटा सा शब्द विश्वास आपकी पूरी परिदृश्य को बदलने की सामर्थ्य रखता है। For many things in our life. हमारे जीवन के बहुत सी चीजों के लिए Just believe. केवल विश्वास रख, Because we know that the law gave things to do and not to do. क्योंकि व्यवस्था हमें ये करना और ये नहीं करना सिखाती है, And man failed time and again. और मनुष्य कई बार इन्हीं व्यवस्थाओं में चूक जाता है। So God changed the whole situation. इसलिए परमेश्वर ने सारी परिस्थिति बदल दी। He brought in a new covenant. उसने एक नई वाचा हमारे साथ बांधी है, A new covenant which is based on belief. और वो नई वाचा विश्वास पर आधारित है। Abraham believed God. अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया, It was accounted unto him for righteousness. उसका विश्वास करना उसके लिए धार्मिकता गिना गया। He did not work out. वो उसने कर्म नहीं किया धर्मी बनने के He लिए, just believed what God has said. परमेश्वर ने जो वचन बोले उस पर भरोसा कर लिया। Oh, glory to God. Hallelujah. 400 years after Abraham, अब्राहम के मरने के 400 साल के बाद the law came. व्यवस्था आई। The law killed. व्यवस्था मारती थी, The law depressed. ओ व्यवस्था लोगों को हताश कर डाली। The law created fear. व्यवस्था लोगों के अंदर डर लाई, And the man could not lift up himself. और आदमी अपने आप को उस बोझ से उठा नहीं पाया। He could do so many works and so many वो sacrifices. इतने काम करता, इतने बलिदान करता था, Nothing would happen to him. लेकिन तो भी उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। So God had a plan परमेश्वर के पास एक योजना पहले से with थी। one supreme sacrifice. एक अंतिम और उत्तम बलिदान होगा, He cancelled everything of the law. और वो सारी व्यवस्था की बातों को उसने हटा दिया। A new age has come. एक नया युग का आरंभ किया। Law came by Moses. व्यवस्था तो मूसा के द्वारा हमें मिली, Grace and truth came by the Lord Jesus Christ. अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह से हमें मिली। What you have to do? आपको और मुझको क्या करना है? Nothing. कुछ भी नहीं। Everything has been done. क्योंकि सारा काम उसने कर डाला। You know, Peter's writing says, आप जानते पत्रस लिखते हुए बोलता by है, his stripes you were healed. उसके यीशु के कोड़े खाने के कारण तुम चंगे हो चुके हो। Try to understand. इस बात को समझने का प्रयास Who you करें। are. आप कौन हैं? You take your name. आप अपना नाम लीजिए। Do you have any doubt about yourself? क्या आपको अपने स्वयं के बारे में कोई संदेह है? No. नहीं। You know I am so and so. आपको अच्छी तरह पता है मैं फलाना फलाना व्यक्ति हूँ। So is the word. वैसे ही वचन भी है। When he's saying, जब वो कह रहा है by his stripes यीशु के कोड़े खाने से you were healed. तुम चंगे हो चुके, Meaning everything is paid for. मतलब सारी चीजों की कीमत चुकाई जा चुकी है। Only thing we got to do is to receive it. एक ही काम जो हमें करना है अब उसे ग्रहण करना The है। problem is we want to work again. समस्या ये आती है कि हमें सब लेकर फिर कर्म करना चाहते हैं।
Salvation is free. उद्धार उसने मुफ्त में दिया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And this salvation और ये जो उद्धार है you can receive आप इसे प्राप्त कर सकते हैं without doing any works. बिना किसी कर्मों के बल पे। But परंतु after you receive salvation, उद्धार मिल जाने के बाद good works automatically come out of it. हमारे जीवन से अच्छे कर्म आपे आप निकलते हैं। We don't work out, do good works to get salvation. हम अच्छे अच्छे कर्म करके मोक्ष या उद्धार पाने का यत्न नहीं करते। After we receive it, यीशु के उद्धार को पाने के बाद the nature changes हमारा स्वभाव में अंतर आ जाता है and we begin to do those things और which are हम good. उन कामों को करने लगते हैं जिसे लोग अच्छा काम कहते हैं। We are not saved by works. हमारा उद्धार कर्मों से नहीं हुआ, We are saved by grace through faith. हमारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हुआ है। That is why इसलिए that favorite verse of ours, वो हमारा जो सबसे लोकप्रिय वचन है John 3:16. यूहन्ना 3 और उसके 16 में लिखा है, I remember वो मुझे याद है। when we were children, we were being taught to learn it by heart. बचपन से सिखाया जाता था इसे मुखाग्र याद करो, For God so loved the world. क्योंकि परमेश्वर ने Hallelujah. जगत से ऐसा प्रेम He किया। loved you and me. उस परमेश्वर ने आपसे That He मुझसे प्रेम gave His only begotten Son, Jesus Christ. कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को दे दिया, That whosoever ताकि जो कोई भी believeth on Him उस यीशु पर विश्वास करेगा will not perish, will not go to hell, वो नाश होकर नरक नहीं जाएगा, but will have everlasting life in heaven. परंतु इस यहाँ के बाद स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाएगा। What? क्या Just by believing? ये सब केवल यीशु पर विश्वास करने से? Oh yes, बिल्कुल, because He did it all for you. क्योंकि उसने सब कुछ मेरे और आपके लिए कर दिया है। Whosoever, जो कोई भी the sinner, पापी, however deep and old that sin might be, वो कितना भी उसका पाप पुराना पाप हो, कितना गहरा पाप क्यों ना हो, Christ has redeemed us यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया, by His own blood. अपने खुद के लहू को देखकर मोल लिया। We are not redeemed with corruptible things as silver and gold, हमारा छुटकारा सोना और चांदी को देकर नहीं हुआ है, but by the precious blood of Jesus Christ. परंतु प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के बदौलत हमारा छुटकारा A हुआ है। small little word, एक छोटी सी आयत है, the word belief. विश्वास करना। Amen. आमेन। Can change the whole ये situation. छोटा सा शब्द हमारी जिंदगी की पूरी परिस्थिति को बदल सकता है। Jesus said in Mark 16:16, यीशु मसीह ने मरकुस 16 के 16 में कहा, He that believeth and is baptized shall be saved. जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा। Amen. आमेन। Some of you are saying that we are contemplating about baptism. कुछ लोग कहते कि हम पानी के बपतिस्मा के बारे में अभी सोच रहे हैं। It's a command. वो तो प्रभु की आज्ञा है, Obey it. उसका पालन करें। No, but my pastor doesn't believe in that. नहीं, लेकिन मेरे जो पास्टर वर्तमान में वो उस पर विश्वास नहीं करते। He will believe it. वो विश्वास करेंगे। You go and tell him. आप उन्हें जाकर कहें, This is the word of God. ये तो परमेश्वर के वचन में लिखा है I want to obey. और मैं इस वचन का पालन करना चाहता हूं। Don't postpone it. उसे आप लंबित ना रखें Maybe tomorrow, maybe next month when a convention comes. कि कल या फिर अगले महीने या फिर किसी कन्वेंशन के टाइम में मैं बपतिस्मा लूंगा, Some special speaker comes in. कोई मुख्य वक्ता आएगा तब मैं ये कदम उठाऊंगा। No, don't postpone it. नहीं, आप उसे बिल्कुल भी लंबित ना रखें। Here is water. ओ पानी यहाँ है, Who hinders me to be baptized? वो कौन अब मुझे पानी के बपतिस्मा लेने से रोक सकता है, उसने कहा। Listen, my friends. सुनिए मेरे दोस्तों, This is only 3-minute job, ये तो केवल मुश्किल से 3 मिनट का ही कार्य होता है, but it will save your soul. परंतु वो कदम आपके प्राण को Secure your soul, rather. वो आपके प्राण को सुरक्षित कर देने का कार्य करता You're है। saved by faith, विश्वास से आपका उद्धार होता है, but obey God. परंतु उद्धार के बाद यीशु के आज्ञा का पालन Believe करें। on Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें and be saved. और उद्धार पाएं। Amen. आमेन। You remember, आपको याद है
In the Acts of the Apostles 16 chapter, प्रेरितों के काम की किताब और उसके 16 अध्याय में Paul and Silas are put in jail पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिया गया था। for no crime they had done. ऐसा कोई अपराध नहीं था जो उन्होंने किया जिसके कारण वो जेल में थे, For something good they had done. परंतु इसलिए जेल में थे क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया था। Delivered one girl from demons. एक लड़की जिसमें प्रेतात्मा थी, उस लड़की को उसने चंगा कर दिया था। They were beaten up for that. लोगों ने पकड़कर उनको मारा, They are inside the jail. जेल में तक डाल दिया। They are praising God at night. जेल में बैठकर मध्यरात्रि के समय परमेश्वर की स्तुति के भजन गा रहे थे। Special charge, they were put into the center prison. और ऐसा जैसे कोई मुख्य कैदी को बीच के कटघरे में, बीच के कैद खाने में डालते, Put their hands and legs in stocks. यहाँ तक कि हाथ और पांव में जंजीरें और बेड़ियां बांध दी। They began to praise God वे लोग at उसी midnight. हालत में मध्यरात्रि को प्रभु की And you स्तुति गा। know what happened. आपको पता ही होगा The earthquake. क्या हुआ। भूकंप आया, Doors and chains were loosed. कैद खाने के दरवाजे खुल गए, उनके जंजीरें खुल गईं। Every man gathered together. हर एक मनुष्य वहां पर इकट्ठा हो गया, Nobody ran. लेकिन कोई भी कैदी भागा नहीं। The jailer thought they all escaped. जेलर उठा और उसे लगा कि सारे कैदी भाग गए। He wanted to commit suicide. वो तो अपने आप को मार डालना चाहता था। And Paul with a loud voice said, don't do any harm to yourself. पौलुस ने देखकर ऊंची आवाज से चिल्लाकर रोका, हम सब यहाँ हैं, We are all here. हम सब यही हैं। All the worst criminals are here. सारे खतरनाक से खतरनाक कैदी भी भागा नहीं है। The thing that can control the whole situation is the presence of God. यदि कोई चीज है जो पूरी परिस्थितियों को नियंत्रण में कर सकती है, वो परमेश्वर की उपस्थिति To है। control these hardened criminals. इन कठोर अपराधियों को नियंत्रित करना। You can go through many classes, they will not reform. आप उनके लिए कितनी भी क्लासेस लगा दे, आप पाते इनमें कोई सुधार नहीं आता। But when Spirit of God begins to work, लेकिन जहां पर परमेश्वर की आत्मा काम करने लगती है, there is change. वहां पर बदलाव आने लगता है। I pray to God. मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से Every jail will have a revival. हर एक जेल के अंदर वहां पर एक आत्मिक बेदारी आए। Amen. आमेन। There are some jails where there is revivals. कुछ जेल हैं जहां पर आत्मिक बेदारियां हैं। People worship God in spirit and truth. लोग परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई के साथ उपासना करते हैं। They knew they were sinners. उनको मालूम था वो लोग पापी हैं। They knew why they are there. उनको मालूम था उन्होंने किस अपराध के कारण वे वहां हैं। They are not to be told again and again. उनको बार बार फिर बताने की जरूरत नहीं, They know it. उन्हें अच्छी तरह मालूम है। That's why इसलिए they are so open to the gospel of grace. वे अनुग्रह के सुसमाचार के लिए इतने खुले मन के होते हैं। Jesus Christ came into this world to save sinners. प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया तो पापियों को बचाने आया। None of the criminals escaped. कोई भी अपराधी उस दिन भागा नहीं। Power of God. परमेश्वर Oh, की hallelujah. सामर्थ, Hallelujah. 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 The Hallelujah. presence of God परमेश्वर की उपस्थिति doesn't need sermons to be preached. वो ऐसी जरूरत है कि संदेश का प्रचार किया जाए। Amen. Amen. They won't need that. माफ करें, उन्हें जरूरत नहीं कि वहां पर कोई संदेश का प्रचार किया जाए, Giving them good advice. कि उनको कोई आकर अच्छी सलाह दे, The atmosphere changed. क्योंकि वहां का वातावरण तो यूं ही बदल The Holy गया। Ghost is there. पवित्र आत्मा वहां पर The presence है। of Christ Jesus is प्रभु there. यीशु मसीह की उपस्थिति वहां है। That makes all the difference. यही चीज सब कुछ बदल देती है। And the jailer said, और जेलर आया और बोलता है, he came with a light. वो तुरंत लपका एक रोशनी को लेकर। So powerful was the convicting power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की कायल करने वाली सामर्थ इतनी जबरदस्त वहां थी। He was convicted and he said like this, ये आदमी खुद जो है जेलर, वो कायल होकर बोलता, Sirs, what must we do to be saved? हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? Amen. आमेन। Hard-hearted man. कैसे कठोर दिल वाला एक सिपाही, Just few hours back he has given them good thrashing. थोड़े ही घंटे पहले उसने इन्हीं पौलुस सिलास को उसने कोड़े मारे थे। Might have abused them, kicked them. और मारते समय गाली भी बका होगा, लात भी मारा होगा। Now he is wanting salvation. लेकिन अभी गिड़गिड़ा रहा है, मैं उद्धार पाने क्या करूं? And Paul said, पौलुस ने उससे कहा, believe on the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। Hallelujah.
You will be saved. तू उद्धार पाएगा, Your household will be saved. तेरा घराना उद्धार पाएगा। I don't know what happened next, ओ मैं नहीं जानता क्या हुआ, but there is a change of scenario. परंतु हम आगे वहां पर एक परिदृश्य को बदलते देखते हैं। He's washing the wounds. हम पढ़ते हैं कि वो जाकर ले जाकर उनके घावों को पोंछने लगा Spreads a table before them. और उनके सामने भोजन को मेज में रखा खाने के लिए। Midnight, मध्य रात्रि के whole आसपास हो रहा है, household is taken baptism. पूरा घराना बपतिस्मा लिया। That's the power of the Holy Spirit. ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। Salvation, उद्धार not so complicated. वो इतना पेचीदा या कठिन नहीं है, Simple. सरल है। Believe. केवल विश्वास कर। And they were baptized. और वे लोग बपतिस्मा लिए। Oh, today we have classes after classes. आज लोग एक के बाद एक क्लास लेते, No problem. कोई समस्या नहीं है, It's good. अच्छी बात है सिखाना। But what about the power of the Spirit? परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में क्या विचार है? In the 8th chapter of Acts we read, प्रेरितों के काम और उसके 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, eunuch come to Jerusalem to worship God from Oh. Ethiopia. वो कूश देश से एक खोजा परमेश्वर की उपासना करने यरूशलेम आया था And he had attended the whole ceremony. और उसने यरूशलेम की सारी आराधना में शामिल हुआ। It did not touch his heart or soul. उसके प्राण में, उसके आत्मा में कोई स्पर्शित नहीं हुई बात। The reason he had come for, he didn't get. जिस कारण से वो इतना दूर से आया था, वो इच्छा पूरी नहीं हुई। So God had a plan to get the gospel through to him. परमेश्वर के पास एक योजना थी इस व्यक्ति तक सुसमाचार ले जाने He का। told Philip, run behind this chariot. यीशु मसीह ने अपने चेले फिलिपुस से कहा कि दौड़ और इस रथ के पीछे हो ले। Many chariots are going. बहुत से रथ वहां पर दौड़ रहे But थे, this one. परंतु उनके पीछे नहीं, इस रथ के पीछे। The man is reading the word. और अंदर देखता है रथ के एक आदमी बैठकर एक किताब को पढ़ रहा He's है reading that portion from 53rd chapter of Isaiah. और वो पढ़ रहा था यशाया नबी की किताब के 53 अध्याय को। He's saying, who has believed our report? और वहां पर लिखा है, Hallelujah. किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया? To whom is the arm of the Lord revealed? किस पर परमेश्वर की भुजा प्रकट हुई? Who has believed? किसने विश्वास किया है? Again that word belief is there. और फिर से वो वचन विश्वास वहां पर है। So Philip began to run and said, do you understand what you're reading? रथ के पीछे दौड़ते फिलिपुस ने पूछा, जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता He भी says, how can है? I unless somebody tells me? उसने कहा कि जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? And from that same portion, Philip preached unto him Christ. और फिलिपुस ने उसी पवित्र शास्त्र के अध्याय से पढ़कर उसको समझाने लगा। Something had happened in the chariot. और उस रथ के अंदर बैठे बैठे कुछ हुआ। The Holy Ghost had worked in his heart. पवित्र आत्मा इस खजांची के जीवन में काम किया। His eyes were looking out for water. अब उसकी आंखें बाहर पानी की खोज कर रही थी। He spots a place there is water. और एकाएक उसकी नजर पड़ी एक जगह पानी था। And he says, stop the chariot. उसने हुक्म दिया, रथ को रोको। Here is water. और कहा, देखो यहाँ पर काफी What पानी does hinder है। me to be baptized? अब बता मुझको बपतिस्मा लेने में कौन सी और कमी है? And you know what Philip said? आपको मालूम है फिलिपुस नाम के चेले ने उससे कहा, Verse 37. 37 आयत में, And Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। And he said, I believe Jesus Christ is the Son of the living God. और उस खोजे ने Hallelujah. क्या उत्तर दिया? Hallelujah. मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। Salvation comes like this. उद्धार ऐसे ही आता है, Just believe. केवल विश्वास कर। Where you are sitting right now, आप अभी जहां पर भी बैठे हैं, in your drawing room, चाहे वो अपने ड्राइंग रूम में, hearing in your kitchen, या आप किचन से ही सुन रहे हैं, maybe in your bedroom, या अपने बिस्तर बिछौने में है, salvation is at your door. उद्धार वहीं तेरे करीब है। You don't have to go for a pilgrimage. तुझे उस उद्धार के लिए तीर्थ यात्रा में नहीं जाना। You don't have to go confession in the church. वो तुझे उस उद्धार को पाने चर्च के कन्फेशन के लिए नहीं जाना। Christ is there in your room. तेरे उसी कमरे में, उसी जगह में प्रभु यीशु मसीह This है। very moment your soul can be saved. और इसी पल तेरा प्राण हमेशा के लिए उद्धार पा Your सकता soul है can be saved from hell. और नरक से वो बच सकता है। Believe केवल विश्वास कर that Jesus died for you. कि यीशु मसीह तेरे ही लिए
अपनी जान दिया, shed his blood. अपना खून बहाया, Third day he rose again. और तीसरे दिन, मरने के तीसरे दिन जी उठा। Now he sits at the right hand of the Father, आज वो स्वर्गीय पिता के दाहिनी ओर बैठा है, glorified. महिमामयी स्थिति में है। Your soul will be saved. तेरा प्राण अभी उद्धार पाएगा। Amen. आमेन। If you have never accepted Christ as your Savior, आज के पहले आपने कभी भी यीशु मसीह को अपना उद्धार करके स्वीकार करने का कदम नहीं उठाया, do it now. आप उसे अभी करें। Just a short prayer. एक छोटी सी प्रार्थना जब हम करते He'll हैं, change your life. वो आपकी जिंदगी को बदल देती है। Hallelujah. हालेलुया। Believing God for healing. परमेश्वर पर चंगाई के लिए विश्वास करना। You and I have to believe मुझको और आपको कि हम what विश्वास God has said will happen. कि परमेश्वर ने जो कह दिया है वो होगा। Amen. आमेन। Two blind men followed Jesus. दो अंधे एक समय यीशु मसीह का पीछा करते आए। Matthew 9:28 we read. मत्ती 9 और उसके 28 में हम इस घटना को पढ़ते And हैं। when he had come into the house, the blind came unto him, and Jesus said unto them, Believe ye that I am able to do this? और जब उस घर में जहां यीशु था वे आए तो यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं? And they said, उन्होंने उत्तर दिया, Yes, we do believe. हाँ, हम विश्वास करते हैं। Immediately, और तुरंत ही their eyes were opened. उनकी आंखें खुल गई। They were following Jesus वे यीशु का के पीछे पीछे आ रहे थे, without seeing him. बिना यीशु को देख पाए। Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? What an effort! क्या ही प्रयत्न था उनका। They have very keen hearing. उनका कान बहुत तेज होगा They have keen sense. और उनका समझने की शक्ति बड़ी तीव्र होगी। They followed where the crowds are going. वे उस भीड़ के साथ जा रहे थे जो यीशु के पीछे थी। They have even inquired where he will be और वो ये भी पूछे होंगे कि वो अभी कहाँ जा रहा है। when he was in the house. जब वो उस घर में पहुंचा, There's a knock on the door. वहां पर दरवाजा कोई खटखटाया। Two blind men stand there. दो अंधे आदमी वहां पर खड़े। Jesus said to them, यीशु मसीह ने उनसे पूछा, You believe that I am able to do this? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? And they said, Yes, Lord. उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Just one word, yes. एक शब्द बोला, हाँ प्रभु। Oh God. Hallelujah. Jesus. Amen. That is faith. ये विश्वास है। Believe God प्रभु पर विश्वास कर for your healing. अपनी चंगाई के लिए। Don't talk of the pain again and again. ओ बार बार उस बीमारी की चर्चा मत कर। Don't talk of what has been said about it. उसके बारे में जो कहा गया है उसकी चर्चा मत कर। Some people know the prescription better than the word. कुछ लोग दवाइयों का हिसाब किताब परमेश्वर के कलाम से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। Nothing wrong to know your prescription. दवाइयों को समझना और उसको जानना बुरी बात नहीं है, But they know it by heart. लेकिन वो काफी अच्छी तरह से उसे याद कर This one रखे in the morning, this one in the afternoon, this one in the evening. कि ये सुबह लेना, ये दोपहर को लेना है, ये शाम को इस दवाई को खाना This has है, got so many mg, this has got so many. कि ये दवाई में इतना mg है तो दूसरे वाले में इतना है। All that they know. ये सब जानकारियां What about God's word? परमेश्वर के वचन की जानकारी के बारे में क्या है? Do you believe क्या आप विश्वास करते हैं you can be healed? कि आप यीशु से चंगे हो सकते हो? But I prayed. नहीं, लेकिन मैंने तो प्रार्थना किया था। It's not that question. सवाल वो नहीं है, Do you believe? क्या तुझे विश्वास है? If you say yes, यदि तू कहता है हाँ, then you have it. तो तुझे मिल गया। When you have it, जब तुझे मिल गया, thank God for it. धन्यवाद दे प्रभु का उसके लिए। Hallelujah. Shake off that Hallelujah. doubt from your mind. उस संदेह को अपने मन से अब हमेशा के लिए निकाल दे। Jairus was another man. याइरस नाम का एक और आदमी था। His daughter was already dying.
उसकी बेटी मरने की स्थिति में थी। So he ran for Jesus. वो दौड़ते हुए यीशु को ढूंढ कर गया। That's what I say. There is desperate situation everywhere. और यही मैं कह रहा था कि ऐसे समय में लोग हताशा में भागते हैं। And he comes. He's a ruler. और वो तो एक बड़ा न्यायी आदमी था। And he comes running to Jesus. दौड़ते दौड़ते यीशु के He पास says, आया "My daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her." और कहा, विनती की कि मेरी बेटी मरने पर है, जल्दी मेरे साथ चल और उस पर अपने हाथ को रख। Jesus was going with him. यीशु मसीह उसके संग जाने लगा। But there was some things that were happening along the way. परंतु बीच रास्ते में कुछ और घटना भी घट रही A थी। woman got healed. एक और दूसरी औरत इस रास्ते में वो चंगी हो गई It took time. और उसके कारण कुछ समय बीत गया। And healing and testimony. और वहां पर एक औरत चंगी हुई और वो बताई वो कैसे चंगी हो गई। And Jairus was thinking, now what's happening? और याइरस मन में सोच रहा था अब क्या होगा मेरी बेटी का। And Jesus is delaying. यीशु मसीह आराम से आ रहा है। And suddenly some people from his house are arriving और there. तभी उसके घर से कुछ लोग आते हुए दिखे। And they whispered to him and said, और उन्होंने आकर याइरस के कान में अलग बुलाकर called him aside. अलग हटाकर बुलाया और कहा, Don't worry the master. स्वामी को अब परेशान मत कर, She's dead. तेरी बेटी मर गई है। Can you imagine क्या आप कल्पना कर सकते हैं what this man has gone through? ये आदमी के अंदर क्या गुजरा। To listen to this news, इस समाचार को सुन, the 12-year-old is no more. 12 साल की छोटी सी लड़की, उसकी बेटी नहीं रही। You might have got a message like this one. आपके पास भी ऐसा ही You कोई prayed for somebody, कोई संदेश कि आपने किसी के लिए दुआ की थी, maybe for their salvation. शायद उनके उद्धार के लिए। It doesn't seem to come through. ऐसा लगा पूरा होते हुए नहीं दिख रहा। Bible says बाइबल बोलती है Jesus heard those words. यीशु मसीह ने उनकी बात सुन ली। Hallelujah. However secretly things might come to your mind, चीजें कितने भी गुप्त तौर से आपके मन में, आपके कान में आए, He hears. वो परमेश्वर सब सुनता है। You know what he said? आप जानते यीशु ने मुड़कर क्या कहा? Be not afraid. उसने याइरस से कहा, डर मत, Only believe. केवल विश्वास रख। Hallelujah. Don't be afraid. ओ डर मत। When fear will come, faith will go. जब डर आएगा विश्वास चला जाएगा। Only believe. इसलिए केवल विश्वास रख। She was dead. वो तो सांसारिक तौर से मर चुकी थी, But when the master is there, परंतु जब प्रभु स्वामी वहां है, the resurrection and the life, जिसका नाम पुनरुत्थान और जीवन है, something good will happen. तो वहां पर कुछ अच्छा ही होना है। Oh, you might go through desperate situations like आप these. हो सकता है ऐसी हताशा की स्थिति से गुजरते And होंगे the word comes to you like this. और ऐसे कोई शब्द निराशा के आपके कान में आते When the हैं। doctors say this very serious condition, जब डॉक्टर ही कह देता कि इसकी परिस्थिति बेहद खराब है, we have tried and we have tried. हमने बहुत प्रयास कर लिया जितना इलाज हो सकता, All the antibiotics we have today. सारे एंटीबायोटिक्स हमने सब इसको दे The दिए, best of treatment, the best of hospital. हमने जो इसको इलाज दिया सबसे अच्छा और उत्तम दिया है, Doesn't make any difference. परंतु उस बीमार में कोई सुधार नहीं है। When you hear these words, जब ऐसा शब्द आप किसी के मुंह से सुनते, Jesus says to you, यीशु मसीह बीच में बोल रहा है, be not afraid, डर मत, only believe. केवल भरोसा रख। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। All things are possible. सब कुछ संभव है। Is there anything क्या too hard for the Lord? कोई भी ऐसी चीज है जो परमेश्वर के लिए कठिन हो? And Jesus raised Jairus' daughter to life again. यीशु मसीह उसके घर गया, उस Hallelujah. मृत बच्ची को उसने उठाकर जिंदा कर खड़ा कर दिया। Only 2 words. केवल 2 शब्द बोले, I say to you, arise. मैं तुझसे कहता हूं, लड़की उठ, Arise, damsel. बेटी उठ। She woke up और वो बेटी उठ गई to a new life. नया जिंदगी के अंदर। Hallelujah. हालेलुया। The secret, रहस्य क्या है? believe.
विश्वास। Amen. आमीन। One centurion came to Jesus seeking for a healing of his servant. एक सूबेदार एक समय अपने सेवक की चंगाई मांगने यीशु के पास आया And he said, I am a man in authority. और वो यीशु से कहता है कि मैं एक अधिकार के अधीन मनुष्य हूं। I say to one, do it, and he do it, and come, he comes. मैं किसी एक को हुक्म देता हूं ऐसा कर, इधर आ, तो वो आता है। You speak the word only, master. प्रभु तू केवल शब्द ही बोल दे My servant will be healed. और मेरा सेवक जो घर में बीमार है चंगा हो जाएगा। Jesus said, I never found so great faith. यीशु मसीह ने आसपास की भीड़ से कहा, मैंने ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा। No, not in Israel. नहीं, इज़राइल में तो नहीं देखा। Faith. विश्वास, Mighty faith. सामर्थी विश्वास, The promise sees, जो प्रतिज्ञा को देखता है, looks to God alone. केवल परमेश्वर की ओर ताकता है विश्वास। Laughs at impossibilities असंभव चीजों के ऊपर तो वो हंसता है and says, it shall be done. और यही दोहराता रहता है, वो तो होगा ही। Hallelujah. 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 Amen. Amen. You just keep on saying it is done. आप बोलते रहे कि ये तो पूरा होगा। Hallelujah. Hallelujah. They brought one man, the man brought one child to dumb spirit to Jesus. एक आदमी अपने बेटे को लेकर यीशु के पास आया जिसके अंदर गूंगी करने वाली आत्मा थी। For oftentimes he falls into the fire and water, the spirit trying to kill him. वो लड़का कितने बार कभी पानी में गिरता, कभी आग में गिरता था। वो दुष्ट आत्मा उस बच्चे को मारना चाहता। I brought him to your disciples, they could not do anything. अब आदमी कहने लगा, हे प्रभु मैंने तेरे चेलों के पास लाए, मेरे बेटे को ठीक कर दे। Lord, help me. वो नहीं कर सके, तू मदद कर। And Jesus said unto him, यीशु मसीह ने उससे कहा, if thou canst believe, यदि तू विश्वास करता है all things are तो possible सब कुछ संभव to है him that believeth. जो विश्वास करता उसके लिए। And straightway the father of the child cried and said, और तुरंत उस बच्चे का पिता यीशु के सामने गिड़गिड़ाने लगा। and with tears he said, आंसुओं के साथ बोलता है, Lord, I believe. प्रभु मैं विश्वास Help करता thou my unbelief. हूं। मेरे अविश्वास में मेरी सहायता कर। I believe. मैं विश्वास That's करता why I have come. हूं, इसीलिए तो आया हूं। If there is anything lacking in my faith, do it for me. यदि मेरे जीवन में कोई कमी है प्रभु उसको ठीक कर दे। Help thou mine unbelief. मेरे अविश्वास पर मेरी सहायता कर। Jesus said, if you believe, all things are possible. यीशु ने कहा यदि तू विश्वास करेगा तो सब कुछ संभव Same है। thing he said at the grave of Lazarus. उसने लाजर की कब्र में भी लोगों से If कहा you था, believe, you shall see the glory of यदि तू God. विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। What to believe? क्या विश्वास करे? Believe that by the stripes of Jesus I'm healed. ये विश्वास करे कि यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए उसके कारण मैं चंगा हुआ हूँ। What to believe? क्या विश्वास करें? He took my sins and sicknesses on his own body विश्वास करे कि उसने मेरी बीमारी को और मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया and है nailed them to the tree. और उस क्रूस पे अपनी जान दिया है। What to believe? क्या विश्वास करूं? In my name you shall be healed. विश्वास करे जो उसने कहा है मेरे नाम से तुम चंगे होगे। All things are possible. सब कुछ संभव है। Amen. आमेन। Believe विश्वास करें God for a miracle. परमेश्वर पर एक चमत्कार के लिए। Mark's Gospel 11th chapter, मरकुस का सुसमाचार और उसका 11 अध्याय। reading from verse 22, it said, Jesus answered and said unto them, have faith in God. और उसकी 22 आयत में यीशु मसीह कहता है परमेश्वर पर विश्वास रखो। Verily I say unto you that whosoever shall say to this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe the things which he has spoken shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। Therefore I say unto you, what things soever when ye pray, believe ye receive them, you shall have them. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Pray and say. विश्वास करें और प्रार्थना करें। When you pray, say, जब प्रार्थना करो तो कहो Our Father. हे हमारे पिता। Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहे
if you speak to the mountain, जब तुम उस पहाड़ से कहोगे, have faith. First we have faith in God, पहले परमेश्वर पर विश्वास रखो कहता है, and that believe that that mountain will go when you speak. और फिर वो कहता है उसके बाद जब तुम कहोगे उस पहाड़ से तो वैसा ही होगा Be thou rooted out कि तू उखड़ जा and go and fall into the midst of the sea. और समुद्र में जा पड़, And you believe in your heart और अपने मन में विश्वास करे whatever you have said कि जो कहता हूं will happen, वो हो जाएगा, it shall happen. तो तेरे लिए वही होगा What you have spoken. जो तूने कहा है। Amen. आमेन। Speak to it. उस परिस्थिति से बोले, Speak to that situation. उस स्थिति के ऊपर बोले, Believe that you receive it. विश्वास करो कि तुमने पा लिया है। What I have said जो मैंने कहा है will happen. वैसा ही होगा You shall have it. और तुझे वैसा ही मिलेगा। But I don't see it. लोग कहते किंतु मुझे दिखाई नहीं दे रहा। No, you won't. You may not see it आपको संभव है दिखाई ना दे immediately, तुरंत ही, but very soon लेकिन बहुत ही जल्द you will see it. आप उसे वैसा ही देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Listen, my friends. सुनिए मेरे दोस्त, Miracles are not over. चमत्कार अभी खत्म नहीं हुए। Thing is, we stand before the mountain and we praying to God to remove it. हम पहाड़ के सामने खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु इस पहाड़ को हटा दे। God is saying, speak to that mountain. लेकिन परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि तू उस पहाड़ से बोल Get out from my way. कि मेरे रास्ते से तू हट जा। And I believe और मैं विश्वास करता हूं by morning light it will not be there. कि सुबह की रोशनी तक वो समस्या वहां नहीं रहेगी। Hallelujah. हालेलुया। It shall happen वो वैसा ही होगा what you said. जो तूने कहा है। This is what Jesus said. ये यीशु मसीह ने And कहा what Jesus said will always back his word. है। और यीशु मसीह ने यदि कहा है तो वो अपने वचन का पूरा समर्थन करता है। Your belief will justify you. तेरा विश्वास तुझे धर्मी ठहराएगा। Amen. आमेन। We have not lost time, but we could have gone further. हम समय से बंधे हुए हैं, अन्यथा हम और इसमें जाते हैं। By him all that believe are justified from all things. उस पर विश्वास करने के द्वारा सब लोग उद्धार को पाते हैं, धर्मी ठहराए जाते हैं। Acts 13:39 we reading. प्रेरितों के काम 13 और उसका 39 में लिखा है, And by him all that believe are justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses. और वो कहता है उस पर विश्वास करने के द्वारा तुम धर्मी ठहराए जाते हो। Amen. Listen, my friends. हालेलुया। Just by believing God, it was accounted unto Abraham for righteousness. अब्राहम का परमेश्वर पर विश्वास करना उसके लिए धार्मिकता गिना गया। As many as received him, to them gave he the power to become the sons of God. और जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। For those who believe on his name. जो उसके नाम पर विश्वास करते। Amen. Amen. Just by believing we are adopted into God's family. जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते We हैं। must confess our belief. हमें अपने किए हुए विश्वास को मुंह से अंगीकार करना है। Paul writing says, पौलुस लिखते हुए बोलता है, 2 Corinthians 4:13, दूसरा कुरिन्थियों 4 और उसके 13 में बोलता है, we having the same spirit of faith according as it is written, I believed, therefore I have spoken. We also believe and therefore we speak. इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। What you believe, speak. जो तू विश्वास करता है उसको बोल। If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे, believe in your heart that God has raised him from the dead, अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, you shall be saved. तो तू उद्धार पाएगा। For with the heart man believeth unto righteousness, क्योंकि मनुष्य विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, and with the mouth confession is made unto salvation. और अंगीकार करने के द्वारा उद्धार को पाता है। Meaning salvation means उद्धार का अर्थ redemption, छुटकारा deliverance, और बचाव, healing, चंगाई, sanctification, पवित्र ठहराए जाना, all inclusive in salvation. ये सारी चीजें उद्धार के अंदर निहित है। Hallelujah. हालेलुया। Your faith should not stand in the wisdom of man, आपका विश्वास मनुष्य के बुद्धि पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, on the word of God. परंतु परमेश्वर के वचन पर निर्भर हो। You see, a gun is loaded up. देखिए बंदूक जिसके अंदर गोली भरी है,
It's got power, उसमें बड़ी ताकत है, but nothing happens परंतु कुछ होता नहीं until somebody lifts it up जब तक कोई आदमी उस हथियार को उठाए ना and operates it. और उसे चलाए नहीं। Same way, उसी प्रकार this is loaded. ये परमेश्वर का वचन भरा है सामर्थ से। It doesn't work automatically. ये आप पे आप काम नहीं करता, It has to be loaded inside the spirit. उसे हमारी आत्मा के अंदर इस वचन को भरना जरूरी है Speak it with your mouth. और विश्वास से उसे बोलना है। Amen. आमेन। I believed, मैं विश्वास किया, therefore have I spoken. इसलिए मैं बोलता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Paul writing to Timothy says, पौलुस तीमुथियुस को लिखते बोलता है, for this cause I suffer these things. इन्हीं कारणों से मैं दुख उठाता हूँ, Nevertheless, I am not ashamed. परंतु मैं लज्जित नहीं होता, For I know whom I have believed. क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने विश्वास किस पर डाला। Hallelujah. हालेलुया। I am persuaded. मुझे पूरा आश्वासन है, God is able to keep what I have committed in His hand. परमेश्वर योग्य उस चीज को संभालने के जो मैंने उसके हाथ में दिया है। He's got the whole world ओ मेरा परमेश्वर सारी दुनिया अपने हाथ में रखता है, in His hand. अपने हाथ में संभालता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. He's got you and me, brother, वो परमेश्वर तुझको और मुझको संभालता in है His hand. अपने हाथ में। He's got the tiny little baby. वो तो छोटे से मासूम बच्चे को भी संभालता है, He's got the whole world वो तो पूरी दुनिया in को His hand. अपने हाथ में संभालता है। Trust Him. उस परमेश्वर पर भरोसा कर, Trust His word. उसके कहे वचन पर भरोसा कर, Only believe. केवल भरोसा। All things are possible. तेरे लिए सब कुछ संभव है। Oh, life is full of struggles. ओ जीवन प्रियो संघर्ष से भरा है, Life is full of challenges. जीवन चुनौतियों से भरा है। Sometimes कभी कभी our faith begins to waver. हमारा विश्वास उन सब के कारण डगमगाने लगता है। Sometimes कभी कभी we do not know where to go, what to do. हम जान नहीं पाते, मैं क्या करूं प्रभु, कहां जाऊं। When the news is so negative, जब सुनाई देने वाले समाचार सब खराब नकारात्मक है, the newspapers are negative, अखबार के समाचार भी अच्छे the नहीं, television news is negative, टेलीविजन में जो सुनाई देता the नकारात्मक doctor's है, reports are negative, डॉक्टर का रिपोर्ट भी हताश करने your वाला है, report card is negative. आपका पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड भी दुखदाई है। Jesus says, यीशु मसीह तब कह रहा है, don't be afraid, डर मत, only believe. केवल भरोसा रख, All things are possible. सब कुछ संभव है। Don't give up हार मत मान, at the brink of a miracle. तू खड़ा है चमत्कार के कगार पे, Tomorrow, क्योंकि आने वाले कल God will do great things for you. परमेश्वर तेरे लिए बड़े चमत्कार करेगा। Healing is yours. चंगाई तेरा भाग है, Salvation is yours. उद्धार तेरे लिए है। Wonders, signs and wonders is yours. चिन्ह और चमत्कार प्रभु ने तेरे लिए रखा, Because He did it all. क्योंकि उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। Amen. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Without Him, I can do nothing. Without Him, I'll surely fail. Without Him, life will be drifting like a ship without a sail. Oh Jesus, oh Jesus, do you know Him today? Please don't turn Him away, oh Jesus, my Jesus. Without Him, how lost I will be. Father, we thank you. पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं, The words of assurance which come to us आश्वासन देने वाले ये वचन जो आए, when all around us we see gloom and despair.
जब हम अपने चारों तरफ दुख और निराशा देखते हैं, you speak those words of comfort to us. तू इसके बीच में आशा भरने वाले वचन बोलता है। Fear not, कहता है डर मत, only believe. केवल विश्वास रख, Rest in my word. मेरे वचन पर तू भरोसा रख, Trust in my word. मेरे वचन पर निर्भर हो, Rely on my word. मेरे वचन का सहारा ले, Heaven and earth will pass away. क्योंकि स्वर्ग हो या पृथ्वी हो टल जाएगी, My words will never pass away, Jesus said. यीशु ने कहा मेरा वचन तो भी नहीं टलेगा। Lord, we believe. प्रभु हम विश्वास करते हैं, Help our unbelief. हमारे अविश्वास का संदेह का उपाय कर प्रभु। Let there be healing to the souls of men. लोगों के प्राण में वहां पर चंगाई दे दे प्रभु। Spiritual healing, Lord. Deliverance. प्रभु आत्मिक चंगाई और छुटकारा, Forgiveness of sins. ओ पापों की क्षमा दे दे, Peace in the heart. उनके मनों के अंदर हृदय में शांति, Salvation in the soul. उनके प्राण में उद्धार दे दे। We pray a blessing on them. तेरी आशीष तेरे लोग जीवन, Those who are seeking healing in their bodies. जो बीमार है शरीर में चंगाई मांग रहे, Oh Lord, we speak your word tonight. प्रभु this morning. तेरा वचन हम अभी यहाँ से बोल, You sent your word and healed them. तूने अपने वचन को भेज कर लोगों को चंगा किया। Receive your healing. ओ अपनी चंगाई को, जो बीमार है वो ले ले, Be thou healed. और तुम चंगे Be हो thou जाओ, healed. तुम चंगे हो In जाओ Jesus' name. यीशु के नाम में। Sickness go away from that body. बीमारी उस शरीर से निकल जाए, Receive it this day. इसी दिन उस चंगाई ले Begin लो। to thank God for it. प्रभु को धन्यवाद देने लग जाओ। God is true to his word. परमेश्वर अपने वचन के प्रति सच्चा है। Hallelujah. हालेलुया। Like that nobleman, उस राजा के कर्मचारी के समान he believed thy word. उसने तेरे कहे शब्द को मान लिया। Hallelujah. And this child was healed. और उसका बेटा चंगा हो गया। Yes. Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी, You have already done the job. तूने काम को पूरा कर दिया है। We thank you for it. हम तेरा धन्यवाद देते उसके लिए। Bless your precious people. तेरे बहुमूल्य लोगों को आशीष दे। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन, Amen. आमीन। Thank you for your prayers and thank you for supporting us. आपकी प्रार्थनाओं के लिए और आप जो सहयोग देते हैं उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Keep us in your prayers. हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। Pray that God will keep us faithful. प्रार्थना यह भी करे कि प्रभु हमें विश्वास योग्य बनाए रखे till the end of time, समय के अंतिम दिन तक, and for God to protect us also. और यह भी कि प्रभु हमें रक्षा भी हमारी करे। We take the offering, इस समय हम अपने भेंटों को एकत्रित कर सकते हैं। sing a chorus. एक कोरस को हम इस समय गा लेंगे। You don't need to understand, you just need to hold his hand. You don't ever need to ask the reason why, for I know he'll make a way through the night and through the day. You don't need to understand, just hold his hand. Father, we pray a blessing on this offering. पिता हम तेरी आशीष को इस भेंट के ऊपर में मांगते हैं। Those who gave, bless them, Lord. जिन्होंने दिया उन्हें आशीष दे प्रभु। Those who could not give, bless them too. जो देने में समर्थ थे उन्हें भी आशीष देना। Return them 1,000-fold, I pray. ओ तो अपने लोगों को 1000 गुना लौटा कर दे, That they may lack nothing in their life. ताकि अपने जीवन में उन्हें कोई कमी ना आने पाए। May we all together love you and serve you all the days of our life. और प्रभु हम सारे लोग मिलकर जीवन भर तुझसे प्रेम कर सके, तेरी सेवा कर सके। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।
And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of God the Almighty, blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. Amen. God bless you all.